So students, how are you? Fine. So I think कि आपने alternating current का सारा chapter अच्छी तरह से thorough study कर लिया है. So now today we are discussing problems on multiple choice questions. So now the first question is alternating EMF 200 under root 2 sine 100t is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. RMS value of current in the circuit is. अब आप देखिए, first of all, IRMS value of current means it will be the ratio of RMS value of voltage to that of capacitive reactance, because here the element used is capacitor. Now XC is 1 by C omega. अब आप देखिए, value of capacity is given C, that is 1 microfarad means 10 is per minus 6 farad. अब आप कहोगे what about omega? E is equal to E naught sine of omega t. So if you compare, then value of omega comes out to be 100. So that means it is 1 over 10 is per minus 4. So that means here capacitive reactance is 10 is per 4 ohm. अब उसके बाद देखिए, E is E naught. So that means the value of the peak voltage is 200 under root 2 volt. So then what will be the RMS voltage? It will be peak voltage divided by under root 2. So it will be 200 volt. तो आपके पास RMS वैल्यू वोल्टेज की आ गई 200, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 10 इज टू पावर 4. तो आंसर क्या बन गया? 2 इंटू 10 इज पर माइनस 2. और अगर आप मिली एम्पियर में लोगे तो इट विल बी 20 into 10 is per minus 3, that means 20 milliampere. So B will be the correct choice for this question. तो आपने इस तरीके से इसमें सोचना है. अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर. सेकेंड क्वेश्चन इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज X. बोथ capacitance and frequency is double. Now you see Xc is 1 by C omega. So that means this Xc is inversely proportional to both capacity and frequency, because omega is 2 pi n. You can see here it is 1 upon C into 2 pi n. So इसका मतलब अगर इन दोनों वैल्यू को आप डबल कर दोगे तो रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इट विल बिकम x by 4. आप इसमें अगर लिखना चाहोगे, यू विल राइट इट लाइक दिस, दैट xc2 by xc1 is n1 c1 upon n2 c2. ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 पाई कॉमन कैंसिल आउट हो गया. नाउ अगर n1 n और c है, then this is 2n and 2c. So naturally this ratio is 1 by 4. तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई? x by 4. So D will be the correct choice in this case. जब बेटे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सप्रेशंस की, तो आपको ये पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल डू ऑल दीज कैलकुलेशंस mentally only. Now the next problem is resistor 30 ohm, inductive reactance 10 ohm, capacitive reactance 10 ohm are connected in series to AC voltage E, that is 300 under root 2 sine omega t. We have to calculate current in the circuit. So now first of all, here it's the circuit R, L and C. So here we will calculate impedance, which is given by R square plus XL minus XC का whole square under the root. Here value of R resistance is 30. Value of XL and XC both is 10.
So now 10 will cancel with 10. So that means in this case impedance will be equal to R, that is 30 ohm, and this will be the condition of resonance. अब इसके बाद देखिए E is equal to E naught. So now the peak value of voltage is 300 under root 2 volt. So what will be the RMS value? It will be 300 volt, and now IRMS is ERMS by Z, 300 by 30, so it will be 10 ampere. So C will be the answer. अब आप सोचोगे, आप कहोगे कि जी इसमें 10 अंडर रूट 2 एम्पियर क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि जब भी आपको पता है, बार बार आपको एक ही चीज़ क्लियरली बताई जाती है कि इसमें उसने जैसे कहा करंट इन दिस सर्किट, सो दैट मीन्स जो वैल्यू पढ़ी जाएगी और हम किस वैल्यू को एमीटर या वोल्ट मीटर किस वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, दैट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू. तो इसलिए आप इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम्स को करोगे. सो ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान है अगर आपको थ्योरी जो है वो क्लियर है. Now the question number 4 is, resistor and capacitor are connected in series. Resistor and capacitor are connected in series with the AC source. That means like this. Now it is given potential drop across capacitor is 5 volts. And potential drop across resistor is 12 volt. Now the question is, what is the value of applied voltage? Now you know one thing in this case, that in case of AC circuit, voltages are not added directly, but they are according to the phase difference. So in this case, V will be VR square plus VC square under the root, because if you are taking voltage VR along x-axis, due to phase difference VC will be in this direction or not in this direction. Actually in case of capacitor, volt current अगर आप ले रहे हो तो current lead करता है, तो we will say in this case that if VR is on this direction, then VC will be in this direction and this will be V. तो ये आपके पास क्या बन गया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट 144 प्लस 25 का अंडर रूट, इट इज 169 का अंडर रूट, दैट इज 13 वोल्ट. अब इसमें जो चॉइसेस दी हैं, दोज चॉइसेस आर 17 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. सो सी विल बी द आंसर, दैट इज 13 वोल्ट. Now the next problem is at resonance. Now next problem, question number 5. अब मैं इसलिए बेटा ऐसे लिख रही हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो यू डाउनलोड दोज क्वेश्चंस और उसके बाद आप खुद ट्राई करिए. ट्राई करने के बाद यू सी दिस वीडियो एंड यू गेट द नॉलेज अबाउट ऑल दीज आंसर्स. And even the written answers will be available in description also. Now the question number 5. Now the question number 5 is, at resonance in a series LCR circuit, which relation does not hold? अब इसमें 4 relations दिए हैं. A is given omega is equal to 1 by LC. Second is omega is equal to 1 by LC under the root. Third is L omega is equal to 1 by C omega. And the fourth relation is C omega is equal to 1 by L omega. अब आपसे पूछा गया क्या है? मैंने क्या पूछा है? At resonance in series LCR circuit, which relation does not hold good? So the question is, resonance of series LCR circuit, you know that condition for resonance is that inductive reactance is equal to capacitive reactance. It means that
omega L is equal to 1 by C omega, or you can say omega square is 1 by LC, or omega is equal to 1 by LC under the root. तो you see ये भी सही है, ओमेगा L is 1 by C omega, ये भी सही है, और अगर आप उल्टा लोगे तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? कौन सा रिलेशन सही नहीं है? दैट इज द फर्स्ट रिलेशन. सो ए विल बी योर आंसर. तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए. बेटा देखो, फर्स्ट ए जो आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने की है वो यही है कि यू शुड नो कि हाउ टू टेकल द प्रॉब्लम्स, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूले गिवन. और सेकेंड स्टेज में आएगा कि हाउ क्विकली यू कैन डू, हाउ यू हैव टू मैनेज टाइम इन दोज प्रॉब्लम्स. Now in the question number 6. In the question number 6 it is given a coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. That means एक coil है, उस coil के अंदर L और R दोनों exist कर रहे हैं. Inductive reactance is 31 ohm and resistance is 8 ohm. So this is one coil. उसके बाद क्या कहा मैंने? It is placed in series with a capacitor of capacitance that is 25 ohm. So यानी कि XC की वैल्यू जो आ गई that is 25 ohm. The combination is connected to AC source. And this AC source of 110 volt. So अब आपसे क्या पूछा गया है? Power factor of the circuit. The four choices are given: 0.33, 0.56, 0.64 and 0.8. So पहले तो ये हो गया कि in actual practice जब कॉइल को कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया तो ये आपके पास LCR सर्किट बन गया. So first of all we have to calculate value of impedance, that is Z, which will be R square plus XL minus XC का whole square under the root. So here R is 8, XL is 31 and XC is 25. तो अब ये आपके पास आ गया 8 का square 64 and 31 minus 25 is 6 का square, that is 36. तो 100 का under root will be 10 ohm. अब इसके बाद आप देखिए कि आपके पास अगर ये इम्पिडेंस ट्राइंगल है तो इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ R and this is value of XL minus XC, so this is value of Z and this is 5. और आपको पता है what is power factor? Power factor is cos phi, which is equal to R by Z. Now value of R is 8 ohm and value of Z is 10 ohm. So 8 by 10 it will be 0.8 ohm. So D will be the correct answer in this case. तो इसलिए अब देखो उसने आपको मैंने कहा क्या था कि एक कॉइल, लेकिन मैंने साथ में ही कह दिया कि उस कॉइल में इंडक्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है. सो दैट मीन ये आपके पास LR सर्किट बन गया और उसके साथ हमने कैपेसिटर जोड़ दिया तो दैट मीन ये LCR सर्किट आ गया आपके पास. Now the next is question number 7. Now in question number 7 जो आपको मैंने दिया था, this was the conceptual problem. इसमें क्या दिया था कि in an AC circuit the current, क्या आगे चॉइस दी थी कि current क्या है in phase with voltage, कि ये वोल्टेज के साथ फेज में है. सेकंड में मैंने क्या कह दिया कि करंट लीड्स वोल्टेज. थर्ड में मैंने क्या कह दिया? करंट लैग्स वोल्टेज. अब फोर्थ में मैंने कह दिया कि एनी ऑफ अबव. तो करंट के लिए तो कोई भी जो आपके पास एसी सर्किट है उसमें मैंने ये चीज़ पूछी है.
मैं इसमें ये नहीं कह रही कि whether only resistance is connected to AC, capacitor is connected, LR सर्किट है, CR सर्किट है, मैंने इन जनरल बात की है। तो जब इन जनरल बात करते हैं तो यू नो दैट कि कहीं पर करंट जो है इन फेज है वोल्टेज के साथ, कहीं पर लीड कर रहा है, कहीं पर लैग कर रहा है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस के ऊपर। इवन अगर आप एलसीआर सर्किट की भी बात ले लो तो उसमें भी तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। तो इसलिए हम इसमें करेक्ट आंसर किस पे टिक करेंगे? डी पार्ट पे कि इट इज एनी ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is 200 volt AC source is fed to series LCR circuit जिसमें वैल्यूज दे दी हैं XL is 50 ohm, XC is 50 ohm and R resistance is 25 ohm। कितनी वोल्टेज बोला है? 200 वोल्ट। तो जब इस तरीके से वोल्टेज बोलते हैं तो जो वोल्टेज सर्किट के अंदर हम बात कर रहे हैं वो कौन सी होती है? आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो वी आरएमएस इज 200 वोल्ट। ठीक हो गया। अब पूछा क्या है मैंने आपसे? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो इसमें 4 चॉइसेस दी थी, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, then 400 volt and then 200 volt। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो कि जैसे अब इसमें ये आपके पास बेटा LCR सर्किट आ गया ना, और इसके साथ ये AC सप्लाई दे दी। तो सीरीज सर्किट में से आपको पता है सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, तो I करंट फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस करंट I। उसके लिए हमें इम्पेडेंस पता होनी चाहिए। इम्पेडेंस विल बी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। और वैसे आप यहाँ से अगर सीधा ही देख लोगे व्हेन वैल्यू ऑफ XL एंड XC इज सेम, सो दैट मीन्स आप डायरेक्टली बेटा वहाँ Z इज इक्वल टू R ले सकते हो। तो अब I आपके पास मीन्स कौन सा है जो फ्लो करना है, जिसको मेजर करना है, दैट इज IRMS। तो इट विल बी VRMS बाय R। तो VRMS इज 200 एंड वैल्यू ऑफ R इसमें आपको कितनी दी है? 25। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 8 एम्पियर। तो अब हमें ये पता है कि 8 एम्पियर करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है। तो नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL क्या बनेगा? I इंटू XL। तो I इज 8 एंड वैल्यू ऑफ XL इज 50। तो 50 into 8 is 400 volt. So now here your answer will be C। तो इसमें अब ये हो गया कि बेटी आपको आगे से आगे कैसे चलना है। चीज़ें तो वो ही होनी है बेटा इसमें, लेकिन अब देखो वही इम्पिडेंस निकाल ली। इम्पिडेंस कैलकुलेट करके हम पावर फैक्टर का क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें इम्पिडेंस निकाल ली तो हमने ये देख लिया कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें आपको ये पता है कि पोटेंशियल जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस आएगा तो उसका कौन सा सम आप ले रहे हो? ज्योमेट्रिकल सम। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9 is resonant frequency of series LCR circuit। तो resonant frequency series LCR circuit की 600 हर्ट्ज है। अब आप कहोगे कि it is resonant frequency, तो now अगर हर्ट्ज यूनिट है तो you can take it to be NR। ठीक है ना, कि वैसे तो ओमेगा रेज़ टू पाई NR क्वेश्चन में वही आ जाता है, लेकिन जब मैंने आपको लिखा ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो NR इज 600 हर्ट्ज। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 4 एंड
you have to give the value of bandwidth. और इसमें choices आपको दी हैं. Bandwidth is 150 hertz, 300 hertz, 450 hertz and 1200 hertz. You know the meaning of bandwidth? Bandwidth is the difference of frequency, the two values of frequency for which current is 1 by under root 2 times the maximum value, or we say power is half of the maximum power. और आपको याद होगा कि इसमें जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है Q क्वालिटी फैक्टर का, that is the ratio of resonant frequency upon bandwidth. So now here it means that if you have to calculate bandwidth, so you will take it to be resonant frequency, which is 600 upon Q value, that is 4. So your answer for bandwidth will be 150 hertz. So A will be your correct answer. अब इसमें देखो दोनों चीजें आपके पास, ये चीज है इसमें कि अगर वहां पर आपको मैं ओमेगा की फॉर्म में देती तो फिर बैंडविड्थ का जो आंसर आएगा वो भी ओमेगा में ही आएगा, बिकॉज जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज सिंपली अ रेशियो. और क्वालिटी फैक्टर हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज a coil of self-inductance L is connected in series with the bulb. So this is the coil and this coil is connected to the bulb in series with an AC source. So this is the AC source and this is the bulb. Now the question is that brightness of the bulb decreases when. तो इसमें डिफरेंट चॉइसेस दिए हैं कि कब ब्राइटनेस कम होगी. नंबर 1, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल एंड सेकेंड चॉइसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ AC source is decreased. Third choice is number of turns of coil is reduced and next is fourth is none of above. So अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि किस सिचुएशन के अंदर ब्राइटनेस बल्ब की डिक्रीज होनी है. नाउ यू सी कि व्हेन दिस कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब, इट मीन्स दैट सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू बल्ब एज वेल एज थ्रू द कॉइल. ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब. सो दैट मीन्स अगर हम बात ये कर रहे हैं कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज रिड्यूस्ड, it means that less current should pass through bulb. So naturally when two are in series, it means less current will pass through this coil. अब coil में अगर आप current की बात करो तो I current will be V upon this impedance, that's reactance, that is XL. यही होना है ना. Naturally RMS value है जो I और V मैं लिख रही हूँ. अब एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ओमेगा एल. तो इसका मतलब कि अगर आई को रिड्यूस होना दैट मीन्स एक्सेल शुड इंक्रीज. एक्सेल कब इंक्रीज होगा? आइदर वैल्यू ऑफ ओमेगा विल इंक्रीज और वैल्यू ऑफ एल विल इंक्रीज. अब इसमें एल की वैल्यू कब इंक्रीज हो सकती है कि अगर इसके अंदर आयरन कोर हम इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एल किसके साथ आ रहा है? एयर कोर में म्यू नॉट एम स्क्वायर ए एल. लेकिन जब आप बेटा आयरन कोर डाल दोगे तो एल क्या बन जाएगा? इट विल इंक्रीज बाय म्यू आर टाइम्स. म्यू आर विल बी परमिबिलिटी ऑफ आयरन.
सो इसका मतलब कि अगर एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, सो दैट मीन्स बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। अब सेकंड चॉइस सही नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस करेंगे, तो एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिससे करंट सर्किट में ज़्यादा फ्लो करेगा, दैट मीन्स ब्राइटनेस बल्ब की इंक्रीज होगी। थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर आप कम कर दोगे तो वैल्यू ऑफ एल विल रिड्यूस। मैंने अभी बताया ना, इसमें एल क्या होता है, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर ए एल। अगर आप एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हो, अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेते हो, तो ये क्या बन जाता है, एन स्क्वायर ए बाई एल। सो नेचुरली अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कम कर रहे हो तो वैल्यू एल की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें उसमें ये देखना है कि हमारे पास एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, विच कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एल। तो इस तरीके से बेटा इसमें ये पॉइंट्स हैं कि हमें हर एंगल से सोचना है। और मैं आपको बताऊं, शुरू में तरीका ही यही है, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि बेटा आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो सबसे पहले आपके पास साइनॉप्सिस होने चाहिए, सारे फॉर्मूले एक जगह पर, जैसे मैं आपको बीच बीच में बताती रही हूँ, नोटेड हैं। तो आप वहाँ से देख के जब बात कर लोगे, 2-4 क्वेश्चंस इस तरह से हो जाएंगे, फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 is, in an AC circuit, V is equal to 100 sine of 100t in volt, and I is 100 sine of 100t plus pi by 3 in ampere. Now power dissipated in the circuit, power dissipated in circuit हमने बताना है। और आपको जो चॉइसेस दी गई हैं वो हैं, नंबर 1 10 raised to power 4 watt, number 2 10 watt, number 3 2500 watt, and number 4 is 5 watt. तो अब सबसे पहले पावर डिसिपेशन मीन्स एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल, एंड यू नो इट इज गिवन बाय, कैसे कहते हैं इसको, किसने, हाफ ऑफ वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ 5. सो यू सी दिस प्रॉब्लम, दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर करो तो वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 100. I is I naught sine of omega t plus 5. तो इसका मतलब I naught is also 100. Now what is the angle between voltage and current, यानी कि phase difference, that is pi by 3. So it will be cos of pi by 3. So now it is 1 by 2, 100 into 100, cos of 60 degrees 1 by 2. So it is 50 into 50, so it will be 2500. So C will be योर आंसर। ठीक होगी बात। तो मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाई थी, उसमें हमने पावर फैक्टर की बात की थी, और पावर फैक्टर की बात जब हमने की थी तो उसको हमने R by Z लिया। इसमें हम बात कर रहे थे टोटल पावर डिसिपेशन की। एक चीज हमेशा याद रखना कि वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. नाउ question number 12. A coil has inductance of 0.7 Henry and is joined in series with a resistance. तो पहले तो यहाँ पर ये एक coil है, उस coil में L की वैल्यू दी है 0.7 Henry और इसको कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस के साथ, and the value of resistance is 220 ohm. When alternating EMF at 50 cycle is applied to it, तो यहाँ पर alternating EMF apply की और उस alternating EMF की जो frequency है that is 50 cycle per second,
तो क्या बताना है इसमें? इसमें ये बताना है कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा। तो इसमें मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। इसमें चॉइसेस दी हैं 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.7 एम्पियर एंड 7 एम्पियर। अब हम देखें, हमने पढ़ा था वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट हम कौन सा लिखते हैं कि जिस करंट की वजह से पावर कंज्यूम नहीं हो रही। आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट दैट इज IV, मान लो कि कितना करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है IV, तो उसमें जिसकी वजह से पावर कंज्यूम हो रही है दैट कंपोनेंट ऑफ करंट इज IV cos of phi. That will be the current which is in the direction of voltage, and component of current which is perpendicular to the direction of voltage, that is known as whattless component of current. It will consume no power. तो whattless component यहाँ पर है IV sin of phi. तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ IV। तो IV की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट यहाँ पर दी है। तो अब IV मीन्स हेयर EV अपॉन Z। अब Z क्या है? Z इज R² प्लस XL² अंडर द रूट। तो पहले तो इसमें XL निकालें। XL will be omega L. Omega means 2 pi n into L. So it will be 2 pi means 22 by 7, n means 50, L is 0.7 means 7 by 10. तो ये 7 से 7 कट गया, ये कट गया, तो you are getting is also 220 volt. तो the value of resistance is 220 ohm. Sorry, ohm लिखना था, very sorry. तो value of resistance is 220 ohm and value of inductive reactance is also 220 ohm. तो Z की वैल्यू बन गई 220 अंडर रूट 2 ohm. तो इसलिए IV आपके पास क्या बन गया? Now the voltage is 220 and impedance is 220 under root 2. So the IV value of current is 1 by under root 2 ampere. अब इसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ साइन फाई। इसके लिए हम इम्पिडेंस ट्राइंगल लेते हैं। तो जब हम इम्पिडेंस ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें आपके पास ये वैल्यू है R और ये है XL एंड दिस इज फाई। सो नो व्हाट इज साइन फाई? और ये क्या है? Z। तो साइन फाई इज परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी XL by Z। तो XL की क्या वैल्यू है? 220 और Z की 220 अंडर रूट 2। सो दैट मीन्स साइन फाई विल बी 1 by अंडर रूट 2। तो इसलिए IV कितना है? 1 by अंडर रूट 2 और साइन फाई भी कितना आ गया? 1 by अंडर रूट 2। तो वॉटलेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी 1 by 2 एम्पियर मीन्स 0.5 एम्पियर। सो B विल बी दी करेक्ट आंसर। तो देखिए, क्योंकि देखो बेटा इस सारे चैप्टर में बात तो LCR की ही होनी है ना, तो यही है कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। अब इसमें भी हमने क्या कर लिया? पहले इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वहाँ से हमारे पास आ गया कि कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है टोटल, और उसके बाद हमने क्या लेना है? वॉटलेस कंपोनेंट। हमेशा याद रखो कि वॉटलेस कंपोनेंट इज IV sin phi एंड वॉट फुल कंपोनेंट यानी कि जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन हो रही है दैट विल बी IV cos of phi. And now question number 13. Which of the following material is most suitable to be used for making the cores of the transformer? तो इसमें कौन से मटेरियल बताए गए हैं? Number 1 is
soft iron. Number 2 is copper. Number 3 is stainless steel. And number 4 is alnico. तो इसमें ये पूछा गया है कि जो कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर है उसमें कौन सा मटेरियल हम प्रेफर करते हैं. सो द मटेरियल विच वी प्रेफर दैट इज सॉफ्ट आयरन. अब ठीक है, आपको रीज़न तो पता होना चाहिए, नो डाउट. मल्टीपल चॉइस में तो आपने सीधा टिक करना है, पर किसी के माइंड में डाउट होगा व्हाई दिस ओनली. तो याद है कि हमने इसमें ये किया था कि देयर आर सर्टेन एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर. अब जब आप कोर की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कोर. सो ड्यू टू दैट एडी करंट्स विल बी सेट अप, राइट. और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है हिस्टैरिसिस लॉस विल बी देयर, क्योंकि ये जो मटेरियल हैं ये क्या होगा, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज. तो हिस्टैरिसिस लॉस इज मिनिमम in case of soft iron. So this is the reason that the core of a transformer is always taken of soft iron. Now the question number 14. Question number 14 is a transformer has 1500 turns in the primary coil. तो primary coil में number of turns is 1500 और secondary coil में number of turns is 1125. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, 200 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी. 200 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी. और हमें इसमें बताना है कि व्हाट विल बी आउटपुट अक्रॉस सेकेंडरी. तो क्या चॉइसेस दी हैं, आउटपुट अक्रॉस सेकेंडरी. तो इसमें चॉइसेस दी गई हैं 150 वोल्ट, 267 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड नन ऑफ दीज. तो जब आप इस प्रॉब्लम को करोगे तो नेचुरली यू विल टेक दैट ES अपॉन EP, voltage across secondary to that of primary, is equal to turn ratio, that is the ratio of number of turns of secondary to that of primary. ठीक है ना. और इसमें प्राइमरी की आपका दिया हुआ 200 वोल्ट सेकेंडरी का निकालना है. इफ यू सी दिस टर्न रेशियो इट इज 1125 अपॉन दिस. तो आप इसको अगर ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास क्या बन जानी है, इफ यू सी इट विल बी 3/4. अब इसको करके देख लो तो ये 3/4 आएगा, 375. सो 375 से आपने किया ये 3/4. अब इसके हिसाब से एकदम कई बच्चे जो है इसका आंसर लिख देंगे कि भी इट विल बी 200 इंटू 3/4 150 वोल्ट ए. पर ये आंसर क्या है, रॉन्ग है. होगी ना बात कि मैडम ने तो फॉर्मूले को ही गलत कर दिया. फॉर्मूला तो यही कहता है कि आपके पास ये 200 इंटू 3/4 150 आना चाहिए. इट इज 0. क्यों, बिकॉज इट इज डीसी. बेटा डीसी है, एसी होता तो आंसर 150 आना था. अब आप देखो कि जब आप डीसी अप्लाई कर दोगे अक्रॉस प्राइमरी, there will be no change in magnetic flux. So what will be induced EMF set up across secondary? That will be 0. याद है ना, आपको नोट करवाया था कि we cannot step up or step down DC. तो उसका रीज़न यही है कि जब DC आपका फ्लो करेगा तो नेचुरली कॉइल में से जब फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल विल रिमेन कांस्टेंट. तो म्यूचुअल इंडक्शन में तो हम यही कहते हैं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन अनदर कॉइल. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्मर has an efficiency of 80%,
it works at 4 kilowatt and 100 volt. Secondary voltage is 240 volt. So what will be current in primary coil? So current in primary coil is, तो इसमें 4 choices दी हैं, 10 ampere, 4 ampere, 0.4 ampere and 40 ampere. Now this question is also very interesting कि इसमें अब ये देखो, ये दिया कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है, इट वर्क्स एट 4 किलोवाट, तो दैट मीन्स कि ये जो है ये इनपुट पावर होगी. इट वर्क्स एट का मतलब कि इनपुट जो दी, तो इनपुट पावर कितनी दे दी है, 4 किलोवाट मीन्स 4000 वॉट. और साथ में कह रहे हैं इट वर्क्स एट 100 वोल्ट, तो दैट मीन्स ईपी कितना हो गया, 100 वोल्ट. और आपको पूछा क्या है, करंट इन द प्राइमरी, तो बेटा ये तो इसमें जो वैल्यू दे दी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी या एफिशिएंसी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है. देखो ना, कई बार इस तरह से चीज़ें आपको दे दी जाती हैं. सिंपल क्वेश्चन होता है, आप वो सारे फैक्टर्स को देखते हो कि इसको कैसे अप्लाई करें, उस वजह से आप उसको सोच नहीं पाते, कॉम्प्लिकेट कर देते हो, है ना. तो सिंपल, नो नीड ऑफ दिस, क्योंकि सीधा उससे क्या है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स एट 4 किलोवाट एट 100 वोल्ट, तो इनपुट पावर इज 4000 वॉट. तो अब इनपुट पावर क्या है, ईपी आईपी, तो इट इज 4000, तो आईपी क्या हो गया, 4000 अपॉन ईपी दैट इज 100. तो इसमें आंसर क्या बन गया, 40 एम्पियर. सो डी विल बी योर आंसर. तो बेटा मैंने इस तरीके से आपको ये एक सैम्पल पेपर दिया है कि हाउ यू हैव टू टेकल विद मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर. तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पे जाइए, फर्स्ट आप वहाँ से डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर, ठीक हो गया, और खुद अपना ट्राई करिए. और ट्राई करिए कि अगर ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं तो यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन 20 to 25 minutes, नॉट मोर देन दैट. और उसके बाद आप उसकी की देखिए, और या आप वीडियो व्यू करोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से मैं इन प्रॉब्लम्स को, क्या कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाए हैं, क्या लॉजिक लगाए हैं. क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार आप क्या होता है कि ऐसे ही टिक कर देते हो तो वो बाई चांस ठीक हो जाता है. लेकिन जब हमने बात ये कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो उसमें हमने बाई चांस वाला फैक्टर नहीं लेना, उसमें हमने कौन सा फैक्टर लेना है कि हम अंडरस्टैंडिंग के साथ किस तरह से प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर टिक कर रहे हैं. सो प्लीज़ आपको अगर ये प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हो गई हैं और आपको ये अच्छा लगा लेक्चर, तो यू मस्ट लाइक and comment in the comment box. So please subscribe the channel, share, so that you can get the notification for next video. Thank you.